Good morning, students. Myself Rohit Agarwal. Today we are going to discuss chapter practical questions of value-added method. In our last video, we have discussed three methods for the purpose of calculating national income. So out of that, first point, that is a value-added method that we have started. We have discussed the formula about that value-added method. Today we will discuss, or we will just approach for a practical questions of value-added method. स्टूडेंट्स होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला ड्राइव करा था. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट्स अ वैल्यू एडेड मेथड, इसको अपन किस नेम से डिनोट कर रहे थे? जीडीपी एमपी. हाउ टू कैलकुलेट इट? इट्स अ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी. आईसी इज व्हाट स्टूडेंट्स? इंटरमीडिएट कंजप्शंस. वी हैव फुली डिस्कस्ड अबाउट इट एग्जैक्टली क्या होता है. वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. एंड सेल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट और import. What export is? What sales, or import is for sales? Export. Okay, now thereafter, how to calculate change in stock? Closing stock minus opening stock. Now purchase of raw material. Purchase भी हमने बोला था आपको दो टाइप्स में गिवन हो सकता है, in the domestic purchase as well as import. So इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? जीडीपी एमपी हम कैलकुलेट करेंगे. जस्ट हैव अ लुक ओवर अ क्वेश्चन. In a question they have given calculate NVAFC. Now what does the term NVAFC? NVA in different our terminology is NDPFC. VA is for value added, that is what domestic product. So NVAFC means what we have to calculate? NDPFC. This is the information that they have given in our question. Subsidy 40, sales 800, depreciation 30, closing stock 20, opening stock 50, intermediate purchase 500, purchase of machinery 200, import of raw material 60, and export 100. This is the information that they have given in our question. Now we have simply put GDP MP. ये सारे टर्म्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमें समझ में आ गया कि ओके हम इसे फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं. व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी एमपी? इट मींस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सेल्स? Whether it is given? Yes, it's a 800. So we have simply put it 800 here. Plus change in stock. That is what? Closing minus opening. Whether the closing stock is given here, please put a tick mark. ये हो गया हमारा. Closing stock is 20 and opening stock is 50. So we'll simply do it 20 minus 50. So we'll get a closing stock minus IC is what? Intermediate consumption, जिसको हम intermediate purchase भी बोल सकते हैं. Whether it is given in a question? Yes, intermediate purchase 500. So I have put 500 here as an intermediate consumptions. Now one more term is given, purchase of machinery. Is it considerable? No. Import of raw material, is it considerable? Import means it's a part of a purchase. I have told in the last video कि if they have given the header, then sub header is not able to, we will not able to consider the sub header. It means ये जो import दे रखा है raw material का, it's a tring for us, just only for the confusion. In the similar manner, export is also only for the confusion, because the sales, the term sales is given in the question, so we have to consider only sales. Hope इतना clear है आपको? Okay, now with the help of this, just have calculated 800 plus it's a minus 30 and it's a minus 500. So what's the answer, students? 270. Now what is this 270 exactly? 270 is what? GDP MP. But what we have to calculate in a question? NDP FC. So just put a term NDP FC here equals to what we have already with us. Now हमने GDP MP calculate कर लिया, right? GDP MP here, and now we'll simply do addition or subtraction. What we have a gross और हमें चाहिए क्या है? Net. तो gross में क्या करें स्टूडेंट? Gross is a greater term. We'll simply subtract depreciation, तो ये net बन जाएगा. What we have domestic और हमें चाहिए भी क्या है? Domestic. तो there is no addition subtraction. What we have MP and what we required? FC. MP is a greater term, so we'll simply do minus NIT. NIT is what student? Last to last video में discuss करा था. Net indirect taxes, that is indirect taxes minus subsidy. Now what's the value of GDP? 270 minus whether the depreciation is given in the question? Yes, 30. So we'll simply put 30 minus NIT. How to calculate NIT? Indirect tax minus subsidy. Whether they have given indirect tax, just have a look students. No, they have not given indirect tax. So we have put, or we have considered it 0 minus subsidy. Whether they have given a subsidy in a question? Yes, 40. So we have put 40 here. Now just solve it. 270 minus 30
and it's minus and again minus. So minus minus is what? 40. So what's the final answer? 280. So 280 is what? NVAFC, जिसको हम NDPFC भी बोल सकते हैं. होप ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टूडेंट क्लियर होगा. बहुत ही इजी था, वैनिला टाइप एक वार्म अप क्वेश्चन अपन ने लिया. नाउ अब अपन अप्रोच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, calculate value added by A and B. In this question we have to calculate value added. Now A and B means two forms are there in question. Okay, पहला हमने जो क्वेश्चन करा था केवल एक ही फॉर्म थी, उसमें एक फॉर्म का हमने सिंपल कैलकुलेट कर दिया. बट अब यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म्स 1 की जगह 2 है. इट मींस देयर आर 2 फॉर्म्स आर देयर. सो व्हाट वी डू, वी विल अप्रोच इन द सिमिलर मैनर. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन, बिकॉज बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ गया सॉल्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा. ओके, जस्ट हैव अ लुक. Purchased by firm A from abroad. It's from abroad. Firm A ने कितना परचेज करा abroad से? 60 रुपीज. इट मीन्स अब हम इसको क्या करेंगे, डेटा को पहले बच्चों सॉर्ट करिए. हियर इट्स फर्म A, हियर इट्स फर्म B. दोनों ही फर्म का अपन इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लिखते जाएंगे. ठीक है, फर्म A, फर्म B. आई थिंक इट्स नॉट विजिबल. आई जस्ट डू वन मोर थिंग. जस्ट ओके, फर्म A, फॉर्म B. जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगी, विल जस्ट पुट दैट इंफॉर्मेशन हियर. ओके, नाउ परचेज बाय फॉर्म A. फॉर्म A की परचेज कितनी है स्टूडेंट्स? परचेज है यहाँ पे फॉर्म A की 60. लेकिन ये परचेज कहाँ से? अब्रॉड से. मतलब इट्स व्हाट? इंपोर्ट. ओके, ठीक है. परचेज बाय फॉर्म A फ्रॉम फॉर्म B. फॉर्म B से इसने कितना परचेज करा? 160. तो इसकी परचेज में एड ऑन हो जाएगा 160. इट मींस इसकी टोटल परचेज कितनी हो गई? 220. ये उसने अब्रॉड से परचेज करा, ये इसने बी से परचेज करा. अब इधर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब फर्म ए बी से परचेज कर रहा है तो बी के लिए वो क्या होगा? कम ऑन थिंक. इफ फर्म ए इज परचेजिंग फ्रॉम बी तो बी के लिए वो क्या होगा? सेल्स. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी के लिए सेल्स कितनी दे रखी है भाई? ये होगी 160. लेकिन ये किसको सेल्स करी हमने? ए को. यहाँ हमने इन्फॉर्मेशन में गिवन लिख दिया कि ये सेल्स हमारी ए के लिए थी. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट. सेल्स बाय फर्म बी. फॉर्म बी की सेल्स कितनी है? 100. इट्स 180 स्टूडेंट्स. सेल्स बाय फॉर्म बी इज व्हाट? 180. सो अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स. हाउ मच? इट्स 180. और सर ये ए को उसने बेचा था 160. तो अब ये जो सेल्स है हमारे ये काम की नहीं है. इट्स जस्ट ओनली अ ट्रिंग. इट्स जस्ट ओनली अ ट्रिंग. ओनली कंफ्यूज करने के लिए बच्चों, बिकॉज यहाँ पे हमें जो टोटल सेल्स है वो ऑलरेडी उन्होंने गिवन कर रखी है. तो हम अलग से जो सेल्स दे रखी होगी उस पर्टिकुलर फॉर्म की वो कंसीडर नहीं करेंगे. जब टोटल सेल्स दी हो तो सेपरेट डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट, जब यहाँ पे टोटल सेल्स 180 दे रखी है तो उसने जो ए को परचेज किया, ए को सेल्स किया था, दैट इज व्हाट? डोमेस्टिक सेल्स. तो हम उस पर्टिकुलर सेल्स को कंसीडर नहीं करेंगे. ओके, लेट्स मूव. डोमेस्टिक सेल्स बाय फॉर्म ए. अब यहाँ पे फॉर्म ए की क्या आ गई? सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं. कितनी सेल्स करी है उसने डोमेस्टिक में? 220. ये डोमेस्टिक सेल्स है. इट मींस अगर डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है तो साथ में क्या लेना पड़ेगा? हमें एक्सपोर्ट भी कंसीडर करना पड़ेगा. सो हैव अ लुक. एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए डायरेक्टली दे रखा है. एक्सपोर्ट भी फॉर्म ए का कितना है? 60. इट मींस ये फॉर्म ए की कितनी सेल्स आ गई टोटल में? 280 फॉर्म ए की सेल्स कैलकुलेट होकर आ गई हमारी. Thereafter, excess of opening over closing of a form A. Excess of opening means opening ज्यादा है या कम है? ज्यादा. किससे? क्लोजिंग से. कितना? 20. तो इट मींस हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. लेकिन यहाँ ये बोल रहे हैं ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से. इट मींस ये जो फिगर है वो कैसा कंसीडर होगा? चेंज इन स्टॉक हमें कैसा दे रखा है? नेगेटिव में. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चेंज इन स्टॉक इट्स व्हाट? -20. बिकॉज उन्होंने बोला ओपनिंग इज ग्रेटर देन क्लोजिंग बाय ₹20. तो इट मींस हमारा जो चेंज इन स्टॉक है वो नेगेटिव दे रखा है. एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग ऑफ फर्म बी. फर्म बी का भी सेम दे रखा है. फर्म बी का चेंज इन स्टॉक कितना है स्टूडेंट? चेंज इन स्टॉक यहाँ लिख देते हैं फर्म बी का 30 रुपीज. 30 रुपीज से फर्म बी का स्टॉक चेंज हुआ है. नाउ परचेज बाय फर्म बी. फर्म बी की ये परचेज दे रखी है. अभी तक देखो क्वेश्चन में परचेज थी क्या? नहीं. फ्रॉम फर्म ए ₹100. ओके, यहाँ ये हो गई परचेज. इसकी कितनी हो गई परचेज भाई? 100 रुपीज की. लेकिन ये इसने किससे परचेज करी है? ए से. तो सर क्या ये ए की सेल्स होगी? आंसर इज यस. लेकिन ए की सेल्स ऑलरेडी हमें कितनी दे रखी है? सेल्स बाय कहाँ था? डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए.
डोमेस्टिक सेल्स इसकी 220 दे रखी है। इट मींस जो हमने बी को सेल किया होगा वो हमारी डोमेस्टिक सेल्स में इंक्लूड हो गया होगा। अगर सर डोमेस्टिक सेल्स नहीं गिवन होती तो क्या हम इस वाली सेल्स को कंसीडर करते हैं? आंसर इज यस। अगर सेल्स गिवन नहीं होती, डोमेस्टिक सेल्स नहीं गिवन होती, तो हम इसको डोमेस्टिक सेल्स का पार्ट कंसीडर कर लेते। होप क्लियर है इतना? चलिए, नाउ विल सिंपली पुट द वैल्यूज। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज। सेल्स देखिए कितना दे रखा है फॉर्म ए की 280, ठीक है, टोटल हमने यहां से ड्राइव कर ली, माइनस प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दे रखा है माइनस में, तो हमने प्लस की जगह डायरेक्टली -20 कर दिया, एंड माइनस परचेज। परचेज कितनी दे रखी है? 220, इट्स 220। सो व्हाट इज दिस? 240 माइनस हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 40। इट मींस इसकी सेल्स कितनी निकली होगी स्टूडेंट्स? 40। होप ये पार्ट क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। ये हमने सेल्स गिवन करी, कितनी सेल्स आइडेंटिफाई करी? 280 माइनस 20 क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि चेंज इन स्टॉक नेगेटिव में था, एंड माइनस परचेज कितनी थी हमारी? 220। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया? 40। 40 ये क्या आ गया हमारा? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अब हमें किसका निकालना है? वैल्यू एडिशन फर्म बी का। इन द सिमिलर मैनर, यस, सेल्स कितनी है इसकी? 180 माइनस चेंज इन स्टॉक, एक्जेक्टली नेगेटिव में दे रखा है इन्होंने, विल डू सिंपली माइनस प्लस एंड माइनस माइनस, आईसी मतलब परचेज कितना दे रखा है इन्होंने यहाँ पे? 100। सो अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 30, हाउ मच? 180 माइनस 30, हाउ मच? 150। 150 माइनस 100, हाउ मच? 50। सो हमारा यहाँ आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स? 50। मींस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी कितनी हो गई? 50। अगर हमें जीडीपी एमपी, दैट इज व्हाट वैल्यू एडेड के थ्रू हमें कैलकुलेट करना होता, अगर हम हमसे बोलते कैलकुलेट वैल्यू एडेड टोटल या जीडीपी एमपी, अगर जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना हो इस क्वेश्चन में, तो हम दो फॉर्म्स जो हमें सेपरेट सेपरेट इन्फॉर्मेशन है उन दोनों को क्यूमुलेटिव कर देंगे। इट मींस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी। व्हाट्स द आंसर? 40 प्लस 50, दैट्स व्हाट्स द आंसर? टोटल 90। ये टोटल हमारा जीडीपी एमपी कितना आ गया? 90। इट मींस अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जहां पे हमें दो फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी विल डू, वी विल सेग्रीगेट द इंफॉर्मेशन, विल नोट इट डाउन द इंफॉर्मेशन की क्या क्या इंफॉर्मेशन किस फर्म के बारे में गिवन है, विद प्रिकॉशंस, बिकॉज अगर हेड गिवन होगा तो विल नॉट कंसीडर द सब हेड्स। इन दिस मैनर हम पहले इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, देन देयर आफ्टर विल डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला, we will put the values in the formula and we'll get the answers, value added by A as well as by B, then total sum up करेंगे उसको, we'll get the GDP। sir क्या फॉर्म C भी आ सकती है? yes, A B C D, even 3 या 4 फॉर्म्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, but we will approach in the similar manner। first and foremost segregate the information, note it down the information properly, interpret it and then thereafter put it in the question। hope अपने जो आज के दो क्वेश्चंस करे हैं सबको क्लियर होंगे। फाइन, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में अपन इनकम एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड को पहले समझेंगे एंड उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ अप्रोच करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे टू ऑल।